Good evening, praise the Lord, greetings to all in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We thank God for this wonderful and beautiful evening that He has given to us, and we are coming live today again. We all give glory to God. So today we are coming with a very interesting concept as per the Holy Spirit guides, and we thank God for this beautiful evening again. And He had sustained us for a whole week. Many people hadn't seen this day so far, but we are very thankful to God for giving us this wonderful and a beautiful day. So before starting, along with me Sharon, we are coming together, and I would like to request her to say something, and then we will start with the word. सबको जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते, खुदा ने फिर से मौका दिया कि हम सब इकट्ठे होकर वचन में से सीखने पाएं, और खास करके आज के दिन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने सारा हफ्ता निगरानी हिफाजत की और अपने वचनों में से सिखाया, और जो हमने खुदा की ओर से तैयार किया है और आपको हम उसके साथ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और हम चाहेंगे कि आप सब उस बात पर गौर फरमाएं और उसे अपनी ज़िंदगी में लाएं। So now we are going to start with the word, and today the topic is influenced not by miracles but with lifestyle. सिर्फ आश्चर्यकर्म और चमत्कारों से नहीं, बल्कि अपनी जीवन शैली से प्रभाव लाएं। You know, today we are not focusing on our lifestyle, और आज के समय में हम अपनी जीवन शैली पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, and we are focusing on miracles. पर हम चमत्कारों की ओर ध्यान दे रहे हैं। Why you are following Jesus today? आज आप क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? Because you are watching miracles every day, क्योंकि आप हर रोज चमत्कारों को होता हुआ देख रहे हैं, or because you had seen his lifestyle which is very different from other gods. और क्या आप यीशु मसीह की जीवन शैली को देखकर उनके पीछे चल रहे हैं जो बाकियों से अलग है? You know, today we are all knowing Jesus Christ, और आज के समय में हम सब यीशु मसीह को जानते हैं, but we are not knowing that why we are following Jesus Christ. पर हमें ये नहीं पता कि हम क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहे We हैं। all know that we are serving a true Savior, हम जानते हैं कि हम एक सच्चे मसीह के पीछे चल रहे हैं, but we are not knowing that what it will lead us. पर हमें ये नहीं पता कि वो हमें कहाँ ले जाएंगे। So you have to be today very practical, my friends, और आज के समय में हमें इस बात को लेकर बहुत प्रैक्टिकल होना है that we had not to get influenced by miracles. कि हमें अपने जीवन में चमत्कारों को लेकर प्रभाव नहीं We डालना had है, not to be influenced by prophecies. और हमें भविष्यवाणियों को लेकर अपने जीवन में प्रभाव नहीं We डालना had है, not to be influenced by different personalities. और हमें अलग अलग लोगों की जीवन शैली से अपने जीवन में प्रभाव नहीं But डालना we है, had to be influenced by the lifestyle of Jesus Christ. पर हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली को लेकर उसके द्वारा चलना है, उस पर We प्रभाव had डालना है। to take the life of Jesus Christ in us, और हमें प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली को खुद में जिंदा रखना है, and we had to walk in this darkened world. और हमें इस अंधेरे जीवन में चलना है। You know, there are many real incidents in the Bible. और यहाँ बाइबल में बहुत सी पवित्र शास्त्र में बहुत सी सच्ची घटनाएं हैं, In some people's life, और बहुत से लोगों के जीवन में Jesus hadn't done miracles, प्रभु यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया, but his words and his lifestyle has changed the lives of some people. पर उनके शब्दों ने और उनकी जीवन शैली ने लोगों के जीवन में प्रभाव डाला। You know, we are following Jesus Christ. If Jesus will not do miracles, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और अगर प्रभु यीशु मसीह पे चमत्कार ना करें, but still we will walk with Jesus because his life is a very big example for us. पर फिर भी हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे क्योंकि उनकी जीवन शैली एक बहुत ही एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने है, You know, no one had died for a sinner. और कोई भी पापियों के लिए नहीं मरता, Only Jesus Christ has died for sinners. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए इतना No प्राण one दिया। loves sinners. कोई पापियों से प्यार नहीं करता, Only Jesus had loved sinners. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से मोहब्बत रखी। No one has left the beautiful things, कोई भी अपनी सबसे खूबसूरत चीजों को नहीं छोड़ता किसी but के लिए। Jesus Christ left heaven for sinners. प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ा पापियों के लिए। Hallelujah. हालेलुया। That is a very big influence, my friends. और यही सबसे बड़ा प्रभाव है, That God is not waiting for people who will believe in His miracles, और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं जो उनके चमत्कारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, but the ones who are ready to live as just He lives in heaven. और जो लोग प्रभु यीशु मसीह ने जैसे यहाँ संसार में जीवन जिया था उसके पीछे चल रहे हैं। You know, in 1 John chapter 4 verse 17, और हम देखेंगे कि पहला यूहन्ना उसका
4 verse उसके 17. चैप्टर 4 और उसकी 17 वर्स। There is a very beautiful thing written, my friends. और वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, As he is in heaven, जैसे वो स्वर्ग में है as same we are on this planet. और उसी तरह हम इस संसार में हैं। Wow, what an amazing God we serve. और कितनी अद्भुत बात है कि हम उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। That as he is in heaven, my friends, और जैसा वह स्वर्ग में है so as we are on this planet. और हम इस धरती पर हैं। So we will today look on to a chapter, और हम एक अध्याय पे गौर डालेंगे, John chapter 8, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 1 to 12. उसकी 1 से लेके 12वें आयत But तक। we are not going to see every scripture, और हम सभी आयतों का नहीं पढ़ेंगे, but I would like to give you some highlights. और हम उसके बीच में से आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताएंगे। You know, there is a story where Jesus hadn't done a miracle in this, और यहाँ पे एक घटना है जहाँ पर यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, but he did such an amazing thing that no one could imagine. पर यहाँ पे भी यीशु मसीह ने इतनी अद्भुत चीज की है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता उसको। There was an adulteress और यहाँ पे एक व्यभिचारिणी की बात की गई है, who was caught in adultery, और वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, and she was brought to, high priest, और वो महायाजकों के पास लाई गई, and they said there is a law to stone that woman. और उन्होंने कहा कि ये हुक्म है कि ये वाचा के हिसाब से है कि उसको पत्थर से मारा जाए, She must be killed with throwing stones on her. और वो पथराव करके मारी जाए। But there was a clever thing that the high priest did. और यहाँ पे जो महायाजक थे उन्होंने बड़ी अद्भुत चालाकी से एक बात करनी चाहिए, And they want to test Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाहते थे। And that is the point that they took her to Jesus. और इसी कारण के लिए वो व्यभिचारिणी को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। And now we will see from verse 4. और हम चौथी आयत से देखेंगे Please read. कि गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? They said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? Put focus on, but what do you say? और हम इस बात पर ध्यान देंगे कि तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। See that the people are testing Jesus. और यहाँ पे जो लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहे They हैं, wanted to test Jesus because he was very famous. और वो इसलिए उनकी परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय बहुत प्रज्वलित थे, And they wanted to find some point that where they can caught Jesus. और वो इस मौके की तलाश में थे कि कब वो किस बात पर उन्हें पकड़ा जाए। But we will see that how Jesus Christ has changed the life of that adulteress. और हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत तरीके से व्यभिचारिणी के जीवन में प्रभाव डाला। And see in verse 6, please और read. हम 6वीं आयत में देखेंगे, Yes. उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। They said, testing him, that they might have something of which to accuse him. Bible says that they did this to accuse Jesus. और वचन कहता है कि उन्होंने यीशु मसीह को परखने के लिए ये किया। You know that Jesus Christ is living God. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर He है। could do anything. वो कुछ भी कर सकते हैं। But what he did, that he stooped down and wrote on the ground. परंतु क्या लिखा कि वो यीशु मसीह झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे, And with his finger. अपनी उंगली से। And though he did not hear, और इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं रहे थे, he had listened everything. उन्हें हर एक बात को सुना था। He had listened every point. उन्होंने हर एक बात जो महायाजक उस व्यभिचारिणी पर जो भी अत्याचार कर रहे थे, जो बातें बोल रहे थे उसके खिलाफ, उसको सब सुना। Because they were also against that point that who is he that he can forgive sins? क्योंकि वो इस बात की अपेक्षा में थे कि वो क्यों कहता है कि वो सबके पाप माफ कर देगा, उसके पास And अधिकार है, why he heals on Sabbath day? और क्यों वो सबत के दिन लोगों को चुंगाई देता है। But my friends, Jesus Christ had come for another purpose. तो यीशु मसीह एक दूसरे कारण, दूसरे महत्व के लिए धरती पर आए थे। Hallelujah. हालेलुया। That he has come to create eternal kingdom in our spirits.
और वो यहाँ धरती पर अनंत काल का राज्य हमारे हृदय में स्थापित करने आए in थे। our spirits. हमारे हृदयों में, हमारी आत्माओं में। So we will see from 7 verse. और हम साथ में ऐसे देखेंगे, Please read. जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। See, the Jesus Christ has said that one who is without sin shall put, throw a stone on her. अब अभी यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि जिसने पाप नहीं किया, जो निष्पाप है, वो पहले पत्थर मारे। And in 8 verse, और 8वें आयत में देखेंगे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। what action does it says about Jesus? और ये जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, जो उनका एक्शन है, ये क्या कहता है उनके That is a बारे में? very deep thing, my friends. और इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई We है cannot ignore this point. और हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, इसको पीछे नहीं हटा It is सकते। very important thing that he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। Only Jesus is the one who is without sin. और सिर्फ यीशु मसीह ही निष्पाप है। Hallelujah. Hallelujah. He had taken birth on this earth with the power of Holy Spirit. और उन्होंने प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की ओर से धरती पर जन्म And he लिया was only the person who was so holy. और वही एक इंसान थे, वही एक परमेश्वर हैं जो सबसे पवित्र है। And that is the one convicted point that he spake so powerfully. और यही वो महत्वपूर्ण बात है कि वो इतनी बोल्डनेस से इतनी महत्वपूर्ण बातें बोलते हैं। And that is, my friends, it is written, everyone had committed sin. और इसलिए लिखा है कि सबने पाप किया And everyone went short for the glory of God. और सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए छोटे हो गए। And then it has written in 9 verse. और 9वीं आयत में देखेंगे, Yes, please. परंतु ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई See, everyone went away. और सभी लोग चले गए। And why I am telling you this story? और क्यों आपको इस घटना के बारे में बताया जा रहा है? Because I want to tell you that influence is not made by miracles only, क्योंकि आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जो प्रभाव है वो सिर्फ चमत्कारों से नहीं डाला जा सकता। but see the love and passion of Jesus Christ. और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कैसा प्यार है लोगों के लिए। And he had not put judgment on that adulteress. और उन्होंने कोई न्याय नहीं सुनाया उस व्यभिचारिणी पर। And we will see from 10. और हम 10वीं आयत से देखेंगे, And you shall read please till 12. यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या उसने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? क्यों? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप ना करना। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. What a beautiful incident, my friends. और बहुत ही खूबसूरत घटना यहाँ पे देखने को मिलती You है। see, there is no miracle here. और यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं किया गया। But Jesus said that I don't condemn you. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं And देता। see that only one statement has changed her entire life. और इसी वचन ने, इसी बात ने उसके सारे जीवन को बदल डाला And she has turned to be a good woman. और वो पाप रहित जीवन जीना शुरू कर दिया And उसने। that is her changing point, my friend. और यहाँ पे उसके जीवन में बदलाव आना शुरू You होता don't है। need miracles. हमें चमत्कारों की We जरूरत नहीं don't है need prophecies. और हमें भविष्यवाणी की जरूरत नहीं We है don't need any high personalities who will pray for us. और हमें जरूरत नहीं है कि कोई बड़ा इंसान हमें हमारे लिए We प्रार्थना करे। only need is the word of Jesus Christ. सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। That is the point, my friends, when he said, I don't condemn you, go and sin no more. और यही जो महत्वपूर्ण बात है, जब वो कहते हैं कि मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जाओ तुम जा सकती हो। And the next verse he said, he spake to people again. और अगली आयत में हम देखते हैं यीशु ने फिर लोगों से कहा And he said, I am the light of the world. और उन्होंने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, Whoever walks with me जो मेरे पीछे आएगा will not walk in वो darkness. अंधकार में न चलेगा। Hallelujah. हालेलुया। That means that your influence in life, और इसका मतलब है कि जो हमारी जीवन शैली का प्रभाव है it will be when we will walk with Jesus. वो वैसा होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद हो। And that is, my friends, Jesus said that who will walk with me will not walk in darkness. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। When you will walk with Jesus, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे you will चलते see हैं, the change in your life. आप अपनी जिंदगी में बदलाव You will see the देखेंगे। change in your habits.
आप अपनी हरकतों में प्रभाव You देखेंगे। will see the change in your fellowships. आप अपनी संगतों में बदलाव देखेंगे। You will see the change in your nations also. आप अपने देशों में प्रभाव देखेंगे, Because बदलाव he said that देखेंगे। I am the light of the world. क्योंकि वो कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ। Hallelujah. Hallelujah. That is my points, my friend. You only need is the light of the true Savior. और ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली को अपने जीवन में In प्रभाव John डालना है। chapter 1 it says, और यूहन्ना उसका पहला अध्याय में देख the सकते हैं true light has came on this earth. कि जो ज्योति जगत में आई, The true light, सच्ची ज्योति it has come on this earth. इस धरती पर आई। And who is the true light? वो सच्ची ज्योति कौन थी? Jesus Christ. यीशु मसीह। And one who walks with him और जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे will चलते never हैं, walk in वो darkness, अंधकार में नहीं will चलेगा, never walk in sin, वो पाप में नहीं चलेगा, will never drink, वो शराब नहीं पिएगा, he will never do adultery. वो व्यभिचार नहीं You know करेगा। why people are doing adultery today? क्यों लोग इस समय व्यभिचार कर रहे हैं? Because they don't know Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को They नहीं believe जानते। in miracles. वो चमत्कारों पर चलते They हैं। just say we will believe and miracle will be there. वो मानते हैं कि हम विश्वास करेंगे और चमत्कार हो जाएगा। And that is the things who are also going on. और यही बात हो रही है। But the Bible says that a righteous will live by faith. पवित्र शास्त्र कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन पे जिसका प्रभाव होता है वो सच्ची दाखलता के समान है, वो सच्चा जीवन जीता है, He will live with faith. वो विश्वास के साथ जीता है। Because Jesus said, my righteous will live with faith. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा विश्वास उसमें है जो सच्चा जीवन जीता है। Hallelujah. Hallelujah. Now we will see another verse, that is 1 Corinthians chapter 2 verse 16. और हम एक और आयत पर गौर डालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसकी दूसरा अध्याय उसका 16वीं It आयत is a में very देखेंगे। beautiful thing that has been written. और यहाँ पे बहुत अच्छी एक बहुत खूबसूरत बात लिखी That है। it is written, we have the mind of Christ. और यहाँ पे लिखा कि हमारा मन मसीह का है। Hallelujah. Hallelujah. The moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, और जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह को अपना on उद्धारकर्ता the very point your heart is transformed. और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वहां से हमारा बदलाव शुरू हो जाता And है we have the mind of Christ. और हमारा प्रभु यीशु मसीह का मन हो जाता है। Because it has been written, Sharon will read for you. और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 16वीं आयत में, Yes. क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। We have the mind of Christ. हम में मसीह का मन है। So if you have the mind of Christ, अगर आप में मसीह का मन है, then you will not be limited till miracles and prophecies. फिर अगर आप में मसीह का मन है तो आप चमत्कारों तक, भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहेंगे। But you will always follow the lifestyle of Jesus Christ which is in the Bible. और आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली को फॉलो करेंगे, उसे पीछे चलेंगे जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा You है। know why the people are not able to see God today? क्यों आज के दिन में लोग परमेश्वर को नहीं देख पाते? Because the people are responsible for it. क्योंकि जो लोग हैं वो खुद ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। Because they are, rising such leaders in this society और यहाँ पे समाज में बहुत से बड़े बड़े लीडर्स, बहुत से अगुवे खड़े हो रहे who are हैं not genuine and who are not serving God truly. जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची तरह से सच्चाई से उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। And my friends, see, Jesus is still waiting for you. और आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रतीक्षा Mark कर रहे हैं। 9:19 says, मरकुस उसका 9वां अध्याय उसके 19वीं आयत में लिखा है, he says that, oh unbelievers, for how long I will be with you. और वो कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। How that sarcastic, or we can say how Jesus is scolding the people, और कैसे प्रभु यीशु मसीह उनकी डांट लगा रहे हैं, that how much time I will be with you. और कितने समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। My friends, भाइयों बहनों, that I want to tell you one very important thing. और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। That in Bible Jesus said that today's generation seek miracles. और पवित्र शास्त्र की ओर से हम देख सकते हैं कि जो आज की जनरेशन, जो आज की पीढ़ी है, वो चमत्कारों के पीछे चलती है, उनको देखना चाहती है। But the Bible also says that the one who will follow me, I will give them a burden to seek my word every day. और पवित्र शास्त्र कहता है कि जो मेरे पीछे चलता है, मैं उनको ऐसा बोझ दूंगा मेरे वचनों को सीखने का। Hallelujah. We will Hallelujah. see from Isaiah chapter 34 verse 16. हम देखेंगे शाया पुस्तक उसका 34 अध्याय उसकी 16वीं आयत में। What God actually asking to us. अब यीशु मसीह असल में हमसे क्या पूछ रहे हैं, We will see today in this scripture. और हम इस आयत में देखेंगे। It is, I believe so, yeah.
34 verse 16. Yes. और यशायाह उसका 34 अध्याय उसकी 16वीं आयत। Yes. यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इसमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। Search from the book of the Lord. What is it? यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, And said, read. पढ़ो। What it means that you had not to just read upper point, और यहाँ पे सिर्फ हमें ऊपर जो ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन लिखी है उससे पढ़ने की जरूरत नहीं but है, look deeply into this. पर हमें जो आगे लिखा है उसमें ध्यान देना है। Search from the book of the Lord. और यहाँ पे लिखा है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। It is not written search from the book of high leaders. और ये नहीं लिखा कि बड़े अगुओं की किताब में से ढूंढो। It has not written search from the books of miracles. और ये नहीं लिखा कि चमत्कारों की किताबों में से ढूंढो। It has not been written search from the book of prophecies. और भविष्यवाणों की पुस्तकों से पढ़ने के लिए नहीं It बोला has गया। not written that search from the books of this world. और ये नहीं कहा गया कि जो इस समाज की किताब है उसमें से But पढ़ it कर has been ढूंढो। written that search from the book of the Lord. That means the words which are spoken from his mouth. और जो गौर करने वाली बात है जो यहाँ पे लिखा है यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। It has come from the mouth of the Lord. और ये परमेश्वर के मुख से निकली हुई बात And है। it has been collected together by Holy Spirit. और ये सब इकट्ठा की गई है पवित्र आत्मा की द्वारा। And it has been given as a free gift to mankind. और जो पवित्र शास्त्र है ये वो खुदा का वचन है, ये एक तोहफे के रूप में इंसानियत को दिया गया You है। have not to give them lakhs and crores for this. और आपको इस वचनों के लिए लाख और करोड़ों रुपए नहीं देने पड़ेंगे, Only you get it free. और आप इसको मुफ्त में ले सकते हैं And you can read. और इसको पढ़ सकते हैं। And moment you will read, और जब आप इसको पढ़ेंगे, why you are reading the scriptures also? और क्यों आप इन वचनों को पढ़ते हैं? Because it is written, not one of these shall fail. क्योंकि लिखा है इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, Not one shall lack her mate. और कोई भी बिना जुड़ा ना रहेगा, For my mouth has commanded it. क्योंकि मैंने अपने मुख से ही आज्ञा दी है। Hallelujah. हालेलुया। From my mouth has commanded it. क्योंकि मैंने अपने मुंह से ही आज्ञा दी है And his spirit has gathered them. और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। That is the point, my friends. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। You can trust this God's word. और आप इस पवित्र शास्त्र के जो वचनों को विश्वास कर सकते हैं इन पर। Only Jesus Christ's words can change you and save you from hell. और सिर्फ अभी यीशु मसीह के वचन आपको अनंत काल की आग से बचा सकते I हैं। want to encourage to young people और मैं सबसे ज्यादा यूथ पर प्रभाव डालना चाहती that हूँ। you are always searching new things on internet. और आप हमेशा नई नई चीजें इंटरनेट पे ढूंढते रहते If हैं। there is a new worshipper, you will just follow him. और अगर कोई नया गॉस्पेल सिंगर आया, वर्शिपर, आप उसके पीछे चलते हैं। If you find a new pastor, you will follow him. अगर आपको कोई नया अगुआ मिलता है, आप उसके पीछे चलते हैं। And if you find any new church where there are a lot of miracles going on, you will run to there. और आप उस ऐसे कलीसिया को ढूंढते हैं जहाँ बहुत से चमत्कार होते हैं, आप उसके पीछे दौड़ते हैं। You also want to know one very deep thing, my friends, और आपको एक बहुत गहरी बात सीखने की जरूरत है that you have to run towards this God. कि आपको इस वचन के पीछे भागना है। You know, man is for a short while, और जो इंसान है वो थोड़े समय के लिए है, but the influence of Jesus Christ is forever and ever. पर प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव हमेशा के लिए We है। will see one more scripture, हम एक और आयत देखेंगे, Isaiah chapter 55 इशाया उसका 55 and 6 verse. अध्याय उसकी 6वीं आयत। Which Sharon will read for us, then I will read in English for sure. It is written the very, practical word, I will say. और यहाँ पे बहुत ही सीधा वचन लिखा हुआ है। And that is the point, my friends, when New Year had started, और जब नया साल शुरू होता है, God has given me this scripture. और जब नया साल शुरू हुआ था तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये आयत दी थी। And I went to a church and I preached this scripture. और मैं मैं कलीसिया में गई, चर्च में गई, और वहाँ मैंने इस विषय पर, इस आयत पर वचन सुनाया। And please Sharon read for us. और हम पढ़ेंगे, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. See, God says that you have to seek me. और प्रभु यीशु मसीह यहोवा कहते हैं कि मेरी खोज करो। He said that you're not to follow man, और उन्हें ये नहीं कहा कि इंसानों के पीछे दौड़ो, but you have to follow God. पर हमें यहोवा के पीछे दौड़ना है। The influence of Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव had changed life of Peter, पतरस की जिंदगी पर बदल दिया, Paul, पौलुस की जिंदगी को बदला, Stephen,
स्टिफनुस की जिंदगी को बदला, and he has changed all those people who had rejected Jesus Christ. और जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया उनको तक बदला। We know about Moses और also. हम मूसा के बारे में भी जानते He हैं, was the one who said that I cannot speak well. और वो कहता था कि मैं सही तरह नहीं बोल सकता, मैं I इकलौता cannot हूँ, stand in front of Pharaoh. और मैं फिरौन के सामने नहीं खड़ा हो सकता। But we know that Moses' ministry was so powerful. और हम देख सकते हैं कि मूसा की सेवकाई इतनी जो जबरदस्त थी, And why it has gone so powerful? और क्यों वो इतनी जोरदार थी, Because he followed the lifestyle and the word of God. क्योंकि उसने जो यहोवा की जीवन शैली और उनके वचनों को पढ़ा था। Because he followed what God said. और जब वचन परमेश्वर ने बोला, उनके मुख से जो वचन निकले उनके पीछे चला। You know, my friends, that whatever someone says to us, we change according to the word. और जैसा हमें कोई कहता है उसी प्रकार चेंज हो जाते हैं, Because they want to see and they want to get attracted with the point that what they want to see. और हम देखते हैं कि जो वो बात हमें खींचती है उनकी बातों में से, हम उसके पीछे चले जाते हैं। You know, they say that you look beautiful at this point, please change yourself like that. और जब हमको कहता है कि तुम ऐसे सुंदर ज्यादा लगती हो तो तुम ऐसा किया करो। But do you know that there is a point that you have to see, if God likes my style, I will be like that. और अगर प्रभु यीशु मसीह यहोवा आपको पसंद करते जैसे आप हैं, तो आप क्यों बदल रहे हैं? That means that you are not following God, but you are following men. और इसका मतलब ये है कि आप यहोवा को नहीं बल्कि मनुष्य के पीछे चल रहे हैं। So today, my friends, I want to encourage you और आज हम इस वचन के द्वारा आपको इंस्पायर करना चाहते हैं, इनकरेज करना that चाहते we are हैं living in the end days. कि हम अंतले दिनों में जी रहे हैं, We have not to please every man. और हमें किसी मनुष्य को खुश करने की जरूरत नहीं है, We had not to follow any man. और हमें किसी मनुष्य के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, We had not to follow the doctrines of man even. और हमें जो मनुष्य जो हमारे सामने वचन लाते हैं उनके पीछे भी चलने की जरूरत नहीं We है, had not to follow these false prophecies that are making on us. और हमें जो झूठी भविष्यवाणियां हैं उनके पीछे चलने की भी जरूरत नहीं है, You had to follow what Bible says. और आपको उसके पीछे चलना जैसा वचन बोलता है। You know, Paul says in 1 Corinthians chapter 13 और आप जानते हैं कि पौलुस ने पहला करंथियों उसका 13वें अध्याय में लिखा है that prophecies will perish. कि जो भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगी, Prophecies will go away one day. वो एक दिन खत्म हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी, But what it will be there? पर बचेगा क्या? The true word of God, परमेश्वर का वचन which is in your hand, जो आपके हाथों में है, which is in our both hands. जो हमारे दोनों के हाथों में है। That is my point that I want to tell you. और यही बात है जो हम आपको समझाना चाहते You हैं। know, the apostle says in Luke chapter 17 verse 5 to see, we will not read. और लिखा है लूका उसका 17, उसका 5 to 6. We will not read. We will not read. और लूका उसका सारा जो उसकी 5 से 6 आयत में, There was a word that was written, Jesus, Lord, please increase our faith. और वहाँ पे लिखा है प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाइए। You know that faith increases when you hear the word of God. और हमारा विश्वास तब बढ़ता है जब हम प्रभु वचनों को पढ़ते हैं। Either you change 1,000 churches, अगर आपने हजारों चर्चेस बदले हैं, change your 1,000 pastors, आपने बहुत से अगुए बदले हैं, you will still be zero. आप जीरो ही रहेंगे। You know why? क्यों? Because you are not following the word of God. क्योंकि आप वचन के पीछे चल रहे हैं। You know, if I would like to give an example, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। if you're having a cancer, अगर आपको कैंसर है, you will change a lot of doctors. आप बहुत से डॉक्टर्स बदलेंगे, For cancer treatment, you have to go to the one who treats cancer. और अगर आपको कैंसर है तो आप उसके पास जाएंगे जो कैंसर का इलाज करता है, You will not go to gynae. और आप गायनोलॉजिस्ट के पास नहीं You will जाएंगे, not go to dentist. आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे। Either you change 1,000 doctors, चाहे आपने बहुत से डॉक्टर बदले हों, but you have to go to one doctor who will cure your cancer. और आप सिर्फ उसी के पास जाएंगे अंत में जो कैंसर का इलाज करता है। Either you eat a lot of medications, अगर आपने बहुत सी दवाइयां भी खाई, but you will not cure from cancer. पर आपको उसके इलाज नहीं हो पाएगा कैंसर। Same is the case in the spiritual world. और इसी उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि यही सेम केस, यही बात हम Either you go to a lot of churches, lot of pastors, receive many prophecies, आप चाहे बहुत से चर्चेस बदले हों, बहुत से पास्टर्स बदले हों, but only influence will be made with the word of God. पर आपके जीवन में बदलाव प्रभाव सिर्फ यीशु मसीह के वचन से आएगा। Today, just start reading and love your Bible, और आज से अपने वचनों को पढ़ना और इससे प्यार करना सीखिए, because when you will love Bible, और जब आप वचनों से प्यार करेंगे, you will be embracing God Father.
और तब आप प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के वचनों को पढ़ पाएंगे। And you will be, hugging God every day. तो आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से गले लग रहे हैं। We hadn't seen God, और हमें परमेश्वर को नहीं देखा कभी, but from Bible we can see God every day. पर हम वचनों में से रोज परमेश्वर को देख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So today I want to encourage you. We both want to encourage you. और हम आज दोनों आपको इनकरेज करना चाहते हैं। Don't follow men. मनुष्य के पीछे न चलें, Don't follow doctrines. मनुष्य के वचनों के पीछे न चलें। Do as He says. वैसा करें जैसा वह कहते हैं, Do as the Bible says. जैसा पवित्र शास्त्र कहता है वैसा In the कीजिए। day of judgment. और न्याय के दिन में Only His word of God will judge your works. और सिर्फ वचन के आधार पे आपको कामों का न्याय होगा। And if you will be strong in this word, और अगर आप वचन में मजबूत होंगे, your influence in lifestyle will be not seen by God, but all the people. और आपका जो जीवन में प्रभाव है, आपकी जीवन शैली सिर्फ परमेश्वर को नहीं दिखेगी बल्कि सब जो आपके आसपास हैं। Because you cannot hide the light of lamp. क्योंकि आप जो दिया है, आप दिए की रोशनी को छुपा नहीं सकते, You cannot put it on a corner. और आप उसको कभी कोने में नहीं रखते हैं। Same is the case that God will not let you to shine till your family. और सिर्फ इसी सेम बात यही है कि खुदा आपको आपके परिवार तक सीमित नहीं रखेंगे, But आपकी He रोशनी will को, let you shine in every world. और आपको वो दुनिया में, संसार में चमकाएंगे। If you are just following God's word, अगर आप वचन के पीछे चल रहे हैं, God will be ultimately using you in a way that even you don't know about it. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। So this is the point that we want to make clear to you. और आज इस महत्वपूर्ण बात को हम आपके सामने रखना चाहते Keep थे। Jesus in your heart प्रभु यीशु मसीह के अपने हृदय में and रखिए follow Him. और उनके पीछे चलिए। Thank you, my friends, आपका सबका धन्यवाद that you had joined with us. कि आपने हमारे साथ संगति की। And thank you so much for coming with us. And just we are going to wind up now. And just after that, Sharon will share all the things that I'll say in English. Just I would like to thank God with such an encouragement that He has given to us to share this word. And that all we give glory to God. And soon we come with another video and another points that we are going to share. And just share this video with your loved ones and everyone. And this will be uploaded on YouTube also. Today we are going to upload this video, so you can share from YouTube. And on next week we will see that as per the God guides we are going to start some new projects, and then we will update you everything on our page. So that is the point. And thank you for giving your love on the previous video. It has been a lot of people had loved that, and we give all glory and honor to Jesus Christ. Yes, sir. और हम धन्यवाद करते हैं आपका सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए कि हम आपके जो वचन है प्रभु यीशु मसीह ने दिया उसको साझा कर सकें और हम अपने जीवन में इसको प्रभाव में लाएं और इसके द्वारा चल सकें। और जैसे सिस्टर ने बताया कि हम इस वीडियो को यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, आप यूट्यूब से भी शेयर कर सकते हैं और बाकियों के इसको शेयर करिए ताकि जो लोगों के जीवन में जो इस बात को लेकर समस्याएं हैं उसके बारे में क्लियर हो सके उनको, और वो सही तरह से अपना जीवन प्रभु में जी सके। और जैसा हम अब आपको बता रहे हैं कि अगले हफ्ते से हम कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करें तो उसकी अपडेट्स आपको दी जाएगी। So God bless you.